A very warm morning to all of you. This is Abhilasha Nahata from Layal's Public School, and I'm your social science teacher. So, class, in our last class, we started this chapter, Major Landforms of the Earth. So, we have like different relief features. We observe different relief features in our Earth, and the three major landforms which we will discuss in this chapter are mountains, plateaus, and plains. Mountains, plateaus, plains, and different types of landforms are formed due to the two processes, internal process and the external process. Now today we will discuss about mountains. Okay, so mountains. A mountain is any natural elevation, height, altitude of the earth's surface. The mountains may have a small summit and a broad base. It is considerably higher than the surrounding area. Some mountains are even higher than the clouds. As you go higher, the climate becomes colder. So in our previous class, I told you like the basic difference between a mountain and a hill. If any raising uplifted land is higher than 600 meter, that land is considered as a mountain. Okay, or 600 meters below है और थोड़ा सा land जो है raised है, that is considered as a hill. So any natural elevation of the earth surface, ठीक है, और mountains जो है वो उनका जो summit है, summit means जो आपकी ऊंचाई होती है, ठीक है, जो हाईएस्ट पॉइंट होता है किसी भी हिल का या किसी भी माउंटेन का. जस्ट लुक एट दिस पिक्चर, दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है, दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट. So any the highest point of a hill or a mountain is known as a summit. Okay, so the mountains may have a small summit. बहुत छोटा summit भी हो सकता है, बहुत कोई जरूरी नहीं बड़ा हो सकता है बहुत ही broad हो, जैसे like Mount Everest. So sometimes it जो normally क्या होता है, जो mountains होते हैं, हमारे जो surrounding areas होते हैं, उससे काफी higher होता है. It is considerably higher than the surrounding area and sometimes higher than the clouds. Clouds से भी ज्यादा higher होते हैं. And when we go up, ठीक है, when we go higher and higher, the climate becomes colder. जो climate है आपका colder, बहुत ठंडा रहता है. Why? Because of the absence of the carbon dioxide. जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वी इन आवर लास्ट चैप्टर वी टॉक्ड अबाउट एटमॉस्फेयर और उसमें बहुत सारी लेयर्स के बारे में पढ़ा था. तो जो ट्रोपोस्फेयर है, जो आपकी फर्स्ट लेयर है ट्रोपोस्फेयर, अप्रोक्सीमेटली 13 to 15 किलोमीटर्स तक है. तो वो जो लेयर है उसके अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है. और कार्बन डाइऑक्साइड कीप्स द एयर वार्म. तो इसलिए जैसे जैसे हम ऊपर जाते रहते हैं, एज वी गो हायर एंड हायर, द क्लाइमेट बिकम्स कोल्डर बिकॉज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर. बहुत सारे बच्चे सोचते हैं, स्टूडेंट सोचते हैं मैम जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे तो सन के पास जा रहे हैं तो वहां पे तो ज्यादा गर्मी होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है. हमारे अर्थ को कौन वार्म रखता है, कौन सी जो एयर है वो वार्म रखने में हेल्प करती है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हेल्प्स अस टू कीप द एयर warm. Okay, so that's why when we go higher and higher, when we go on the on a higher altitude, then the climate becomes colder. So that's why since the slopes are steep, less land is available for farming. अब देखो बहुत harsh climate होता है वहां का, बहुत ही ज्यादा rough climate होता है, बहुत ठंडा होता है. ठीक है, जो भी लोग, बहुत ही कम लोग जो है mountain areas में रहते हैं. Why? Because जो slopes हैं, जो land areas है वो काफी steep है. देखो एकदम ऐसे plain area नहीं है ना, कैसे steep सी है, मतलब ऐसे slant सी है, ऐसे steep सी है. Less land is available for farming. Farming is very much important for our survival because if we do the farming, we will get the food. Okay, so less land is available for farming. That's why what is happening, that's why
like very less people live in the mountain areas because of the harsh climate, because of the less land available for farming. Okay, so now just look here, look at this activity. How making of a mountain, all you require is a pile of paper. Pile means like some bunch of papers, 4-5 papers आपने ले लिए, some bunch of papers. Put the papers on your table, एक के ऊपर एक के ऊपर एक papers रख दीजिए. Push the papers from both sides by your hands. Just look at this figure. A girl is like pushing the papers from both the sides. ठीक है, दोनों साइड से, अंदर के साइड क्या करते हो, दोनों जो पेजेस के आपके साइड्स हैं, ठीक है, बॉटम साइड से, उन दोनों साइड से आप क्या करोगे, पेपर को पुश करोगे. तो देखो ऐसा स्ट्रक्चर बनने लग जाता है. तो एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग with the mountains, the sheet will folded and rise into a peak. देखो एक पीक बन गया, ये देखो ये चोटी हो गई, ठीक है, पहाड़ की चोटी को बोलते हैं पीक. ये जो ये एरिया है ये समिट होता है, ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट को समिट बोलते हैं. ये जो चोटी होती है इसको हम पीक बोलते हैं. सो दिस इज like you have made a mountain. In the same process our Himalayas and the Alps were formed. Himalayas, Alps are the example of young fold mountains. We will discuss about young fold mountains अभी थोड़ी देर में करते हैं डिस्कस, ठीक है. तो ये जो हमारे young fold mountains है, fold mountains है, तो अर्थ का इंटीरियर है और उसके अंदर जो प्लेट्स हैं वो क्या है, आपस में एक दूसरे के सामने आ रही है. तो जो ये ऊपर वाला पार्ट है वो क्या हो गया, ऐसे ऊपर रेज होने लग गया. ये वाला जो पार्ट था वो क्या होने लग गया, रेज होने लग गया. Just like that, our Himalayas, with the same process, our Himalayas and the Alps were formed. Himalayas और Alps जो है वो formed हुए हैं. तो try it at your home कि कैसे हम mountains बना सकते हैं. Just all you require is a pile of paper. Okay, that's it. Some bunch of papers like 4-5 papers. और उससे आपने क्या कर लिया, हिमालयस को बना लिया. ओके, लाइक माउंटेन्स बना लिया. और उस प्रोसेस से आपको समझ आएगा कि कैसे फोल्ड माउंटेन्स बने. तो जो ये फोल्डिंग्स हो रही है पेपर्स को आप कंसिडर कर लीजिएगा, दे आर टेक्टोनिक प्लेट्स. ओके, प्लेट्स हैं हमारी. Now, in some mountains, there are permanently frozen rivers of ice. They are called glaciers. अब देखो हिमालयाज है, वहां पे परमानेंटली क्या होते हैं, आइस रहती है, ठीक है, रिवर्स होती है वो फ्रोजन होती है, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, ग्लेशियर्स बोलते हैं. There are some mountains you cannot see as they are under the sea because of harsh climate. Some we cannot see some mountains because they are under the sea. And because of harsh climate, less people live in the mountain areas. Since the slopes are steep, less land is available for farming. I already told you about this. So mountains may be arranged in a line known as range. अब देखो हिमालयन रेंज बोलते हैं ना, क्यों बोलते हैं, जो माउंटेन्स हैं आपकी वो एक रेंज में रहती है, एक मतलब एक लाइन से बने हुए होते हैं. जस्ट ये देखो ऐसे माउंटेन्स ऐसे ना रेंज में एक लाइन से ऐसे बने हुए होते हैं, ठीक है. तो ये जो एक लाइन से अरेंज जो होते हैं माउंटेन्स, उनको हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं, माउंटेन रेंज बोलते हैं. Many mountain systems consist of a series of parallel ranges. What is parallel? मैथ्स में पढ़ा होगा, something which do not meet, ठीक है, जो आगे जाके कभी भी नहीं मिलते हैं, ठीक है, एकदम स्ट्रेट जाते रहते हैं, स्ट्रेट जाते रहते हैं, आगे मिलते नहीं है. तो कुछ माउंटेन रेंजेस आपकी क्या होती है, पैरेलल भी होती है. देखो एक ही डायरेक्शन में एक दूसरे के सामने रहती है. तो these are the parallel series of parallel ranges extending over hundreds of kilometers. The Himalayas, the Alps and the Andes are mountains ranges of Asia. Asia के कुछ important आपके mountain ranges कौन-कौन से, हिमालयास, Alps आपकी Alps हो गई, Andes हो गई. These are the mountain ranges of Asia. Europe and South America, Asia, Europe and South America respectively, mountains vary in their heights and shape. अब देखिए हिमालयास कहाँ पे है, आपके एशिया में है, एल्प्स कहाँ पे है, यूरोप में है, और एंडीज कहाँ पे है, साउथ अमेरिका में है. सो माउंटेन्स वेरी इन देयर हाइट्स एंड शेप. और वेरी करती है, अलग अलग हाइट्स के होते हैं, अलग अलग शेप के होते हैं, कोई जरूरी नहीं है माउंटेन एक ही शेप का होगा, ठीक है.
There are three types of mountains: fold mountains, block mountains, and the volcanic mountains. How many types of mountains are there? There are three types of mountains: fold mountains, block mountains, and the volcanic mountains. Please repeat after me: fold mountains, block mountains, and the volcanic mountains. You should know about it. How many types of mountains are there? Three types of mountains are there: fold, block, and volcanic. So the Himalayan mountains and the Alps are young fold mountains. I already gave you, I already told you about the fold mountains. Fold mountains. Fold mountains, these mountains are formed when the Earth's crust bends due to the Earth's movement. अर्थ के मूवमेंट के वजह से जो अर्थ क्रस्ट होती है, अर्थ की जो प्लेट्स होती है, वो क्या हो जाती है? बेंड हो जाती है. अभी मैंने आपको एक पेपर की एक्टिविटी बनाई ना, अर्थ क्रस्ट में अर्थ के मूवमेंट की वजह से ये अर्थ क्रस्ट है, अर्थ की प्लेट्स है, और वो क्या होने लग जाती है? बेंड होने लग जाती है. ऐसे ना इसमें झुकाव आने लग जाता है. ठीक है, आप फोल्ड्स आने लग जाते हैं. तो ये होते हैं फोल्ड माउंटेन्स. एंड नॉर्मली द इंटरनल मूवमेंट्स कॉज फोल्ड्स ऑन द अर्थ सरफेस. एंड इससे काफी अप्स एंड डाउन्स हमें देखने को मिलते हैं. ओके, ये देखो, ये आपका अर्थ क्रस्ट है और ये फोल्ड माउंटेन है. अब अर्थ के मूवमेंट की वजह से दोनों साइड से क्या हो रहा है? दोनों साइड को हमने अगर यहाँ से भी और यहाँ से भी अर्थ क्रस्ट जो है मूव करती है, आपस में जब पुश होने लग जाती है मूवमेंट की वजह से, तो ये ऐसे उभार सा आने लग जाता है, अपलिफ्टमेंट्स हमें देखने को मिलता है. तो इससे फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं. ओके, नॉर्मली फोल्ड माउंटेन्स आपके पैरेलल रेंजेस की होती है. एंड most of the mountains like Himalayas, Alps, and Andes, these are the examples of fold mountains. The Himalayan mountains and the Alps are young fold mountains with rugged means something which is not so smooth, broken, okay, rough. So Himalayan mountains and the Alps are young fold mountains with rugged relief and high conical something cone. हम बोलते हैं ना कोन, आइसक्रीम कोन खाया है क्या? क्या होता है कोन? ये शेप होती है ना, पीछे से कोन की शेप ऐसे होती है ना, ऊपर ऐसे. देखो, ये आइसक्रीम है, ये वाली शेप जो होती है, ये वाली शेप, इसको हम कोन बोलते हैं. सो हाई कॉनिकल पीक्स. अगर आप एग्जाम्पल देखते हुए हिमालय का ये जो पिक्चर गिवन है, ये देखो, जस्ट लुक एट दिस पिक्चर. ये पीक कॉनिकल सा हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलता है ना. तो यंग फोल्ड माउंटेन्स की नॉर्मली जो पीक्स है काफी कॉनिकल सी होती है. जो रिलीफ होता है, जो फीचर होता है, वहां की जो जमीन होती है वो काफी ब्रोकन सी होती है, काफी रॉकी सी होती है, स्मूथ नहीं होती. द अरावली रेंज इन इंडिया, अरावली रेंज इट इज in Rajasthan की है. The Aravalli range in India is one of the oldest fold mountain systems in the world. Aravalli range, which is present in Rajasthan, India, it is one of the oldest fold mountains. Oldest fold mountains है world के. The range has considerably worn down due to the process of erosion. ठीक है, अब जो ये रेंज है धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, ये अपनी शेप्स चेंज करते रह रहे हैं, और इसमें से बहुत सारी चीजें जो रॉक्स वगैरह हैं गिर रहे हैं, छोड़ना अलग अलग शेप्स ले रहे हैं. किसके प्रोसेस से? इरोजन के प्रोसेस से. The Appalachians in North America and the Ural Mountains in Russia have rounded features and low elevation. They are very old fold mountains. Appalachians in North America, North America का Appalachians. और अगर हम आप अपने लास्ट चैप्टर में देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा एल्पेचियंस जो है नॉर्थ अमेरिका में, और यूरल माउंटेन्स आपके रशिया में है. ये इनके जो फीचर्स है कॉनिकल नहीं है, राउंडेड इस टाइप के शेप के हैं, और एलिवेशन भी बहुत ज्यादा हाई नहीं है, हाइट भी बहुत ज्यादा हाई नहीं है उसकी, थोड़े कम ही हाइट है. एंड दे आर द वेरी ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स, और बहुत ही पुराने फोल्ड माउंटेन्स हैं. Okay, so I gave you this example. Some mountains are under the sea. तो उसका एक example है Mauna Kea, Hawaii in the Pacific Ocean is an undersea mountain. Undersea mountain है. It is higher than Mount Everest, being 10,205 meters high. देखिए
10,205 मीटर्स। माउंट एवरेस्ट की हाइट है आपकी 8,050 मीटर्स, अप्रोक्सीमेटली 8,050 मीटर्स है माउंट एवरेस्ट की हाइट। और जो मुआना की है हवाई में है, पैसिफिक ओशियन के अंदर है मुआना की, उसकी हाइट कितना है, उसका एलिवेशन कितना है? इट इज एन अंडर सी माउंटेन। नेम द अंडर सी माउंटेन, नेम एनी वन अंडर सी माउंटेन। मुआना की ऑफ हवाई, पैसिफिक ओशियन में है। एंड व्हाट इज द एलिवेशन ऑफ पैसिफिक मुआना की? 10,205 मीटर्स हाई। ठीक है, अब देखो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि which undersea mountain is higher than the Mount Everest, तो क्वेश्चन आंसर है आपका मुआना की। ठीक है, नाउ we did this portion block fold mountains किया हमने, some examples in the Himalayan mountains, Alps हो गए, Aravalli range हो गया, Appalachians हो गए, Ural mountains हो गए। ये कुछ आपके कौन से ये आपके कुछ young fold mountains है, not young folds but they are the fold mountains. Block mountains. So block mountains are created when large areas are broken and displaced vertically. Vertically, so first of all, understand the term vertically. This position, this is horizontal and ऐसे लंबा सा जो होता है long, this is vertical. Okay, this is horizontal and this is vertical. So block mountains are created when large areas are broken and displaced. The uplifted blocks are termed as horsts, देखो, and the lowered blocks are called graben. Block mountains actually, how they formed? They are formed when a land mass between parallel faults in the Earth's crust is pushed up, or you can say when the land around it sink. Just look at this figure 6.3. जब लैंड मास क्या है, वर्टिकली ऊपर होने लग रही है, ये कुछ लैंड्स जो है आपके अपलिफ्ट हो रहे हैं, कुछ लैंड्स अब वर्टिकली मतलब देखो इसी डायरेक्शन में। यंग फोल्ड में हमने हिमालयस माउंटेन्स में देखा था हॉरिजॉन्टली ऐसा हो रहा था, इसमें क्या हो रहा है, वर्टिकली ऊपर और नीचे हो रहा है। तो ब्लॉक माउंटेन्स आर क्रिएटेड व्हेन लार्ज एरियाज आर ब्रोकन, बहुत जो लार्ज एरियाज है वो टूटने लग जाते हैं, डिस्प्लेस होने लग जाते हैं, बट वर्टिकली जो अपलिफ्टेड होते हैं। ठीक है, जो ऊपर की साइड में जो लैंड आती है, अपलिफ्टेड मींस टू रेज। ठीक है, जो लिफ्टेड ऊपर के साइड में आने लग जाते हैं जो ब्लॉक्स, उनको हम हॉस्ट्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? HORST, हॉस्ट। एंड द लोवर्ड ब्लॉक्स जो नीचे के साइड जाने लग जाते हैं, जो धंसने लग जाते हैं, उनको हम बोलते हैं ग्रैबन। क्या बोलते हैं हम? ग्रैबन। ओके, सो the Rhine Valley and the Vosges Mountain, Rhine Valley and Vosges Mountain in Europe are example of such mountain system. Rhine Valley and Vosges Mountain, यूरोप में Rhine Valley and Vosges Mountain है, और वो किसका एग्जाम्पल है? वो एग्जाम्पल है आपका ब्लॉक माउंटेन्स के। So we will locate them on the world map. ठीक है, हम लोकेट करेंगे जब हम मैप वर्क करेंगे उसमें we will locate it. Okay, now two types of mountains we have already done. First one is the young fold mountains, fold mountains, and the second one is the block mountains. Fold mountains में क्या होता है? When Earth's crust, because of the Earth's movement, the Earth's crust bends. ठीक है, तो उससे क्या होता है आपका फोल्ड माउंटेन्स बोलते हैं। देखो, दिस इज द अर्थ्स क्रस्ट एंड दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, हम ऐसे अर्थ के मूवमेंट से पुश हो रहे हैं दोनों, तो ये जो एरिया है वो क्या होगा, ऐसे ऊपर आने लग जाएगा। ठीक है, ऐसे ऊपर आने लग जाएगा। तो दीज आर द फोल्ड माउंटेन्स। एंड ब्लॉक माउंटेन्स जब अर्थ के मूवमेंट के वजह से, ऑब्वियसली अर्थ के मूवमेंट के वजह से ही होगा, और they are formed when a landmass between or mass or large areas are broken or displayed. बहुत जो बड़ा सा एरिया है टूटने लग जाता है या डिस्प्लेसमेंट होने लग जाती है ड्यू टू, यू कैन से ड्यू टू लैंडस्लाइड्स और ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द अर्थ। तो ये कुछ वर्टिकली अप
अपलिफ्ट हो जाती है, कुछ क्या हो जाती है, सिंक होने लग जाती है। तो वर्टिकली जो अपलिफ्ट होती है उसको हम हॉस्ट कहते हैं, जो वर्टिकली सिंक होती है उसको हम ग्रैबन बोलते हैं। एग्जांपल्स आपके हैं राइन वैली एंड वॉस्कस, बोथ आर द माउंटेन्स फ्रॉम यूरोप। ओके, volcanic mountains. Volcanic mountains are formed due to volcanic activity. You all are very much aware about this term volcano. Volcano erupts hota hai. So these mountains are made up of accumulation of volcanic material ejected from the earth's interior. ठीक है, जब वोल्केनिक एक्टिविटी होती है, जो भी वोल्केनिक मटेरियल इजेक्ट होता है अर्थ के इंटीरियर से एकदम से निकलता है और उसके बाद सूखने लग जाता है, तो उससे क्या होता है, उससे भी आपके माउंटेन्स बनते हैं। एग्जांपल्स हैं आपके माउंट किलिमांजारो इन अफ्रीका एंड माउंट फुजियामा इन जापान आर एग्जांपल ऑफ सच माउंटेन्स। वोल्केनिक एक्टिविटीज के वजह से जो माउंटेन्स बने हैं वोल्केनिक माउंटेन्स, तो अफ्रीका का है माउंट किलिमांजारो एंड माउंट फुजियामा इन जापान, जापान का है माउंट फुजियामा। सो these are the three types of volcano. Now, why mountains are useful to us? Mountains are very useful. The mountains are a storehouse of water. Yes, in our last chapter we discussed about it. The major portion of water is in the form of glaciers or ice. तो mountains useful है because it is the storehouse. हमारा जो water है वहाँ पे store होके stored है, ठीक है। Mountains are the very rich source of water. Mountain glaciers are the sources of water from many rivers, like for example Ganga, Indus River, Ganga River, Brahmaputra, and Yamuna. All these rivers emerge from the glaciers. ठीक है, ग्लेशियर्स से ही तो पिघल के आगे नीचे की साइड में जो है रिवर्स आ रही है. सो दे आर द रिच सोर्स ऑफ वाटर and they are the sources of water for many rivers, and reservoirs are made and the water is harnessed for the use of people. reservoirs को बनाया जाता है. reservoir मतलब पानी को बचा के रखते हैं ना, हम उसको पानी को बचाने के लिए हम बहुत सारी ऐसे डैम्स वगैरह बनाते हैं, तो उन्हीं को हम बोलते हैं reservoir. reservoir आर harness. harness का मतलब होता है harness means टू कंट्रोल. ठीक है, कंट्रोल करना. जैसे डैमेज, हम डैम बना रहे हैं और डैम बना के हम वाटर की, हम क्या कर रहे हैं, वाटर को स्टोर करके रख रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम कंट्रोल कर रहे हैं. तो रिजर्वॉयर्स भी बनाए जाते हैं जिससे कि हम पानी को लोगों के लिए पानी हम मिल सके. ठीक है. Water from the mountains is also used for irrigation and generation of hydroelectricity. ठीक है, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी मतलब वाटर की वेव से, वाटर की फ्लो से जो स्ट्रीम्स को हम, और या फिर जो इलेक्ट्रिसिटी को हम जनरेट करते हैं, दैट इज हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी. ठीक है. तो माउंटेन्स इज ऑल्सो यूज फॉर इरिगेशन के लिए यूज होता है, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज होता है. इवन द रिवर वैलीज एंड टेरेसेस आर आइडल फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स. रिवर वैलीज हो गई, ठीक है, रिवर वैलीज हो गया, टेरेसेस हो गए, जैसे असम में कुछ एग्जाम्पल ले लीजिए, ऊटी का एग्जाम्पल ले लीजिए, हिल्स ही है वो. ठीक है. तो वो वहां पे भी क्या होता है, माउंटेन्स है वहां, वो कुछ क्रॉप्स को कल्टीवेट करने के लिए काफी आइडल होते हैं, काफी अच्छे होते हैं. माउंटेन्स हैव अ रिच वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना. अलग अलग तरीके के हमें प्लांट स्पीसीज मिलते हैं. फौना एनिमल स्पीसीज होता है. फाउना जितने भी एनिमल स्पीसीज है उसके लिए जो टर्म यूज किया जाता है वो है फाउना, एंड जितने भी आपके प्लांट स्पीसीज है उनके लिए जो टर्म यूज किया जाता है वो क्या है, फ्लोरा. सो flora and fauna, rich variety of flora and fauna are there in mountains. The forest ही होता है, they provide fuel, fodder, shelter and other products like gum, resins etc. मतलब food products हो गए या फिर medicinal herbs हो गए. ठीक है, wood हो गया, fodder हो गया, ये सब हमें mountains से मिलता है. Mountains provide an idyllic site for tourists. Idyllic मतलब scenic beauty. ठीक है, हमें बहुत अच्छा लगता है माउंटेन्स में ऐसे जाना, अच्छा लगता है. आप लोग भी बहुत बार गए होंगे. तो इट प्रोवाइड्स अस आइडियलिक ब्यूटी, एक्सट्रीमली हैप्पी, और यू कैन से पिक्चर्स्क्यू, जो आपका पिक्चर्स्क्यू होता है या पीसफुल जो इन्वायरमेंट होता है वो प्रोवाइड करता है.
They visit the mountains for their scenic beauty. Obviously we visit mountains for scenic beauties. बहुत सारे जो स्पोर्ट्स है, पैराग्लाइडिंग हो गई, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, स्कीइंग, दीज आर सम पॉपुलर स्पोर्ट्स इन द माउंटेन्स. सो अब कल मैं आपसे कुछ नेम्स पूछूंगी. कैन यू नेम सम प्लेसेस इन द हिमालयाज एसोसिएटेड विद दीज स्पोर्ट्स. यू हैव टू फाइंड आउट एटलीस्ट 4 नेम्स. स्पेशली इंडिया के ही होने चाहिए. इंडिया के प्लेसेस का आप बताओगे. ऑब्वियसली हिमालयाज, ठीक है, इंडिया में कुछ पार्ट है हिमालयाज का. तो you have to tell me the name of some places in the Himalayas associated with these types of sports like paragliding, hang gliding, river rafting, etc. Okay, and this is an example.